Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we will continue with our chapter. So let's start. The nationalist movement in India. India was under the control of the British, and nationalism in the country evolved to oppose British rule. In 1857, Indian sepoys and some of the subordinate rulers tried to expel the British from the country, but they were not successful. The aim of these rulers was to restore the rule of the Mughals and old kings. Around 1880, the emerging middle class began a struggle to make India a free, democratic, and modern nation. Unlike Japan, where the emperor took the lead in developing the country into a modern nation state, the kings of India did not play such a role. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो इंडिया था वो उस वक्त पे ब्रिटिश के कंट्रोल पे था और जो नेशनलिज्म थी हमारी कंट्री की वो ब्रिटिश रूल में इवॉल्व थी। ठीक है, 1857 में जो इंडियन सेपोइस थे वो वो क्या इंडियन सेपोइस थे और उसमें से कुछ जो सबॉर्डिनेट रूलर्स थे उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। जो एम था उन उन, उन रूलर्स का, ठीक है, जो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेल करने की कोशिश की, ब्रिटिश को हटाने की कोशिश की, तो उनका एम क्या था? उनका एम था कि वो फिर से मुगल और ओल्ड किंग्स, मुगल और जो राजा हैं उनको फिर से रूलर्स बना दें। ठीक है, 1880 के अराउंड जो मिडिल क्लास थे उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया इंडिया को फ्री बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक और मॉडर्न नेशन बनाने के लिए। जापान की तरह जापान में क्या हुआ था कि वहाँ जो एम्परर था उन्होंने लीड की थी कि वो कंट्री को डेवलप करेंगे और एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनाएंगे, लेकिन यहाँ किंग्स ने ऐसा कोई रोल प्ले नहीं किया था। One striking feature of the emerging Indian middle class was that it was made up of people of all castes, religions, and regions of India. There were intellectuals like Dadabhai Naroji and Feroz Shah Mehta, political leaders like Bal Gangadhar Tilak and Gopal Krishna Gokhale, and nationalist patriots like Badruddin Tyabaji and Rahmatullah Sayani, Pandit Ramabai, Lala Lajpat Rai, G. Subramanya Iyer, and Ramase Mudaliar, Vaman Rao Lakhe, Pandit Sundarlal Sharma, Rash Bihari Bose, Madhusudan Das, and Joachim Alva, etc. We can see that there were Parsis, Muslim, Christians, Dalits, Brahmins, people from different religions, social classes, and regions. In other words, the new middle class represented the whole of India and its different communities. Several British men and women living in India, A.O. Hume, Annie Besant, also contributed to India's political evolution. देखिए, एक जो मिडिल क्लास एमर्ज होकर आ रहा था उस वक्त पे, जो मिडिल क्लास एमर्ज होकर आ रहा था, उनमें उनमें जो लोग थे वो इंडिया के अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के और अलग अलग रीजन्स से थे। इनमें इनमें जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनके नाम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी लोग थे वो सभी जो हैं वो अलग अलग कंट्री से, मतलब कुछ जो थे वो पारसी थे, कुछ मुस्लिम्स थे, कुछ क्रिश्चियंस थे, कुछ दलित थे, कुछ ब्राह्मण थे, और अलग अलग सोशल क्लासेस के थे और अलग अलग रीजन से आए हुए थे। अगर दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो जो नया मिडिल क्लास जो आया था वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था और अलग अलग कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। बहुत सारे ब्रिटिश मेन और वुमेन ने भी यहाँ पर इंडिया का सपोर्ट किया, इंडिया के पॉलिटिकल इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, जैसे कि A.O. ह्यूम और एनी बसंत ने। One other striking feature of the middle class was that most of its members had been educated in the English education system. So they were aware of and familiar with the democratic and nationalist ideas that were spreading across Europe. They believed that if India wanted to develop into a modern and developed nation, it should first discard the traditional feudal path and embrace the path of democracy, science, and industrialization. They launched the Indian National Congress in 1885, which met every year to review the country's political situation and to petition the British government to introduce reforms। ठीक है, देखिए इसके बाद में क्या हुआ। जो मिडिल क्लास का एक जो फीचर था वो ये था कि
उन मिडिल क्लास लोगों में से बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो कि जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई की है, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे और फेमिलियर थे डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट आइडियाज़ को लेकर, जो कि पूरे यूरोप में उस वक्त पे फैल रहा था। उनका मानना ये था कि अगर इंडिया मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्न और डेवलप्ड नेशन के बनना चाहता है, मॉडर्न और डेवलप्ड नेशन में डेवलप होना चाहता है, तो उसको सबसे पहले जो ट्रेडिशनल फ्यूडल पाथ है उसको डिसकार्ड करना पड़ेगा और डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाथ पर चलना पड़ेगा। जब इन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉन्च किया 1885 में, जिसमें कि वो हर साल कंट्री के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको रिव्यू करते थे और फिर पिटीशन डालते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताकि वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर सके। दादाभाई नारोजी एनालाइज्ड द इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, पॉइंटिंग आउट how it was impoverishing people day by day. Such writings showed the seeds of nationalism in people. The sprouting seeds took the form of a mass movement after 1905, with people from all over the provinces joining the protest against British rule. There were all there were also underground revolutionary groups who felt that a violent armed rebellion was the only way of freeing the country from the British. They tried to assassinate many oppressive English officials. The most well known among them was the Chapekar brothers and Khudiram Bose. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो दादा भाई नारोजी थे उन्होंने जो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको स्टडी किया, उसको एनालाइज किया और उसके बाद में फिर पॉइंट आउट किया कि लोगों की कंडीशन जो है वो किस तरीके से दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे जो राइटर्स थे उन्होंने नेशनलिज्म का सीड जो है वो लोगों के मन में बो दिया, और जैसे जैसे स्प्राउट हुआ, वो जो सीड वहां पर उन्होंने बोया है वो जैसे जैसे स्प्राउट हुआ 1905 में, तो वो मास मूवमेंट बन चुका था। उस वक्त में जो लोग थे वो हर हर प्रोविंसेस से थे जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंडरग्राउंड इसमें जो लोग थे वो अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स भी थे जिनको ऐसा लगता था कि सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्ट आर्म्ड रिबेलियन ही क्या कर सकता है, मतलब कि वो जब उनका अपोज करेंगे तभी क्या हो सकता है, ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म हो सकता है, हमारी कंट्री से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कई सारे इंग्लिश ऑफिशियल्स को एसेसिनेट करने की भी कोशिश की, मारने की भी कोशिश की, जिसमें से सबसे जो वेल नोन है वो यहाँ पर चैपिकर ब्रदर्स और खुदीराम बोस हैं, ठीक है। The period from 1905 to 1920 was the age of Lal Bal Pal, Lal Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal. Nationalist feelings and ideas spread and developed among the youth under the leadership. ठीक है, जो पीरियड था 1905 से 1920 का, वो जो है वो आपका लाल बाल पाल का एज हुआ करता था, ठीक है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो इन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग्स और जो आइडियाज थे वो पूरे यूथ को स्प्रेड किए थे। The peasants, laborers, Adivasis, Dalits, and women affected by the British policies also raised the banner of revolt. There were rebellions and movements by these groups in many places. These places were not just fighting against British rule, but were strongly opposing the evils of Indian society. They wanted to put an end to exploitative practices such as zamindari, bonded labor, etc., and the social discrimination against women, Dalits, and others. Many movements were against the caste system and the inequalities embedded in it. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो पीसेंट्स थे, लेबर्स थे, आदिवासी, दलित और जो विमेन्स थे जो कि ब्रिटिश पॉलिसीज से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, उन्होंने भी अपनी वॉइस जो है वो रेस की, जो बैनर है रिवॉल्ट के लिए वो रेस किया। ये जो रिबेलियन जो मूवमेंट हो रहा था वो अलग अलग प्लेसेस पे बहुत सारी जगह पर हो रहा था। ये जो ग्रुप थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो साथ में जो इंडियन सोसाइटी की जो इविल्स हैं, ठीक है, जो बुरी चीज़ें हैं इंडियन सोसाइटी की, उनको भी अपोज कर रहे थे, स्ट्रांगली अपोज किया जा रहा था। उनमें वो ये चाहते थे कि जो कुछ एक्सप्लोटिव प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम, बॉन्डेड लेबर, ये सभी को भी ख़त्म किया जाए, और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन के अगेंस्ट में, उन सभी को जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है विमेंस के अगेंस्ट, दलित या फिर किसी के भी अगेंस्ट, उनको भी ख़त्म किया जाए। बहुत सारे मूवमेंट्स जो थे
वो कास्ट सिस्टम और इनइक्वालिटीज के खिलाफ भी थे। द रोल ऑफ गांधी जी इन द फ्रीडम स्ट्रगल। Gandhiji returned in India in 1915 from South Africa, where he was leading a struggle against the South African government for the rights of the Indian community there. He tried to link the nationalist movement in India with the many of other movements in the country so that the peasants, Adivasis, laborers, women and Dalits would have a voice of the freedom struggle. These social groups began to participate in the mass movement in large numbers. अब देखिए फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी का क्या रोल रहा। तो गांधी जी जो है 1915 में इंडिया लौटे थे साउथ अफ्रीका से, और वहां पर जो साउथ अफ्रीका में वो जब थे वो उस वक्त पे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से इंडियन कम्युनिटी के राइट्स के लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ आने के बाद में उन्होंने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा था इंडिया का, उसको बहुत सारे अदर मूवमेंट्स के साथ पे जोड़ने की कोशिश की। ठीक है, अब जो पीसेंट्स, आदिवासी, लेबरर्स और विमेन और दलित थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आवाज उठाई। ये जो सोशल ग्रुप्स थे वो मास मूवमेंट में बहुत सारे नंबर्स में पार्टिसिपेट करने लगे। Gandhiji also propagated the idea of Swaraj or self-rule in which there would be no social discrimination or inequality. He said the objective of the freedom struggle was not just to put an end to British rule but to change Indian society. He was not in favor of a violent revolution. He propagated a new type of protest called Satyagraha. This evolved convincing the oppressors about the truth and resolve to the objectives of the movement. अब देखिए गांधी जी ने भी क्या किया, जो स्वराज का जो आइडिया था और सेल्फ रूल का जो आइडिया था उसको प्रोपगेट किया। ठीक है, और साथ में मतलब वो भी चाहते थे कि जो स्वराज है वो हो, सेल्फ रूल हो, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी जैसी कोई भी चीज़ें ना हो। उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल के लिए ना हो, ना सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रगल चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल को ख़त्म ही ना करे, बल्कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें भी चेंज लेकर आए। वो वायलेंट रेवोल्यूशन के फेवर में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना अलग टाइप का, नया टाइप का प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जिसको सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें सत्याग्रह में क्या होता था कि लोगों को जो ऑप्रेसर्स थे, ठीक है, उनको कन्विंस किया जाता था ट्रूथ के साथ में, और साथ में जो मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके साथ पे उन जो सामने वाला जो पर्सन है उसको कन्विंस किया जाता था। द फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रेंथेंड nationalism in India. Even the common people began seeing themselves as part of an Indian nation, binding them to a common destiny. Folk songs, folk tales, art, and other cultural forms were used to strengthen this sense of unity and pride in the nation. Despite all attempts of the British, this feeling of nationhood could not be suppressed. People were not ready to accept any compromises or reforms to continue living under British rule. They called for total Swaraj and launched the Quit India movement in 1942. जो फ्रीडम मूवमेंट था वो जो इंडिया में है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होते जा रहा था। हर कॉमन पीपल जो है वो अपने आप को एक इंडियन नेशन के तौर पे, ठीक है, अपने आप को क्या पा रहा था, बाइंडेड पा रहा था इंडियन के तौर पे। ठीक है, एक इंडिया क्या हो रहा था, पूरा जो इंडिया था वो एक साथ मिलजुल कर जो ब्रिटिश रूल है उनके अगेंस्ट में लड़ने लगा। बजाय उनके कोई भी फोक हो, कोई भी फोक सॉन्ग्स हो, कोई भी फोक टेल्स हो, सारे जो हैं इन सभी को क्या करवा, ये सभी जो भी कल्चरल रिफॉर्म्स थे वो सभी हमारी कंट्री के जो यूनिटी है, जो सेंस ऑफ यूनिटी है, प्राइड है नेशन का, उस सभी को एक साथ बांध कर रख रहे थे। तो इसके अलावा तो यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी ब्रिटिश ने अटेम्प्ट किए ये सब चीज़ों को तोड़ने के, तो जो फीलिंग थी नेशनहुड की, जो फीलिंग थी वो उनको दबा नहीं पाए, सप्रेस नहीं कर पाए। जो लोग थे वो यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि अब ब्रिटिश जो है वो इंडिया को छोड़कर चले जाएं। ब्रिटिश रूल से वो अब नहीं, ब्रिटिश रूल के अंडर में वो अब नहीं जीना चाहते थे। फिर फाइनली उन्होंने टोटल स्वराज मूवमेंट लॉन्च किया, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको बोला जाता है 1942 में। There were people who were not happy with Gandhiji's leadership of the national movement. They felt its momentum was too slow. They also felt that it did not clearly address issues like ending inequality in Indian society. Many of the younger revolutionaries felt that an armed struggle was the only way to gain freedom from the British. ठीक है,
कुछ लोग जो थे वो गांधी जी के ऐसे स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उनका मानना था कि जो ये जो मूवमेंट है, जो मोमेंटम है इसका, वो काफ़ी स्लो है। और उनका मानना ये भी था कि ये उनके जो इश्यूज़ हैं, मतलब जो वहाँ पर वो जो एड्रेस कर रहे हैं जो इश्यूज़, वो यहाँ पर इनइक्वालिटी को ख़त्म, इंडियन सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो ऐसे इश्यूज़ को ख़त्म नहीं कर रही है। तो बहुत सारे जो यंग रिवोल्यूशनरीज थे उनका मानना था कि आर्म्ड स्ट्रगल से ही जो ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म किया जा सकता है। In the midst of all this different strands of thinking, the country got its freedom in August 1947 after being divided into two nations, India and Pakistan. The leaders of the new nation formed the Constituent Assembly, discussed the drafting of a new constitution for independent India. A committee was set up under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. After 3 years of deliberation and consultation, the constitution was finalized and announced in January 1950. फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइनली जो इंडिया है उनको फ्रीडम मिली अगस्त 1947 में। उसके बाद में भी उनको क्या कर दिया गया था, जो हमारी कंट्री थी उसको दो नेशंस में डिवाइड कर दिया गया था, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। जो लीडर्स थे नए नेशन के, उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट की, मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की, और उसके बाद फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लग गए इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। जो कमेटी थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेयरमैनशिप में बनाई गई, और 3 साल बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा फाइनलाइज्ड और अनाउंस हो गया जनवरी 1950 को। The new constitution, declared as a democratic republic, it said that the state would work to ensure equality, freedom, and justice to all and promote brotherhood among its citizens. The apex body of the nation state would be Parliament of People's Representatives elected by all adult citizens aged above 21 years. It should have the authority to make laws and levy taxes, and the government would be answerable to it. The constitution also granted various freedoms and rights for all citizens. In this way, India became a modern democratic nation state. जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिक्लेयर किया, उसमें डिक्लेयर हुआ था इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और ये जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट जो है वो इंश्योर करेगा कि लोगों को इक्वालिटी, फ्रीडम और सभी को जस्टिस मिले, और साथ में जो सिटीजन्स के अमंग में जो ब्रदरहुड है, ठीक है, जो भाईचारा है वो क्या हो, बढ़े। जो इस एपेक्स जो बॉडी थी नेशन स्टेट में, यहाँ पर जो लोग थे, पार्लियामेंट जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, जो भी यहाँ पर क्या होगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा, वो यहाँ पर अडल्ट सिटीजन्स, जो कि मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो 21 साल से ज़्यादा एज के हैं उनको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते हैं, ठीक है। उनके पास में अथॉरिटी थी कि वो लॉस और टैक्सेस को लिवाई कर सके, और जो गवर्नमेंट रहेगी वो इसको क्या करेगी, आंसरेबल होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लोगों ने ही चूज की है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ का आंसर देना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इसके साथ में लोगों को बहुत सारे अलग अलग फ्रीडम्स और राइट्स भी ग्रांट कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से, मतलब इस तरीके से जो इंडिया है वो एक मॉडर्न और डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट बन चुका था, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है वो खत्म होता है। यहाँ पर आपको ऊपर में एक पिक्चर दी हुई है दांडी मार्च की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर आपको चैनल में अवेलेबल हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थैंक यू।